مشین باہر کے پیغامات ریکارڈ کرنے سے قاصر تھی۔ اسپیکر فون پر وہ جواب سن کر ویرا بولی، حرکت میں ہمیشہ برکت ہی ہوتی ہے۔ یہ نئی بات معلوم ہوئی ہے کہ آئزک بیل کی گرفتار ہوتی ڈیوڈ اسٹارز اپنا دفتر بند کر کے بھاگ گئے ہیں۔ ڈیوڈ اسٹارز انتہائی طاقتور، چالاک، مکار یہودی دہشت گردوں کی عالمی تنظیم تھی۔ انہوں نے شاید آئزک بیل پر نازل ہونے والے مصائب کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگا لیا تھا کہ کسی وقت وہ بھی زیر عتاب آ سکتے ہیں۔ خطرہ بھانپ کر انہوں نے فوراً ہی اپنا ٹھکانہ بند کر دیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں فضا میں اونچی جست لگاتے لگاتے اچانک درمیان میں معلق ہو کر رہ گیا ہوں۔ پیروں کے نیچے زمین برقرار رہی ہو، نہ بلندی دسترس میں ہو۔ شطرنج کا کھیل شاید فرصت اور صبر آزما انتظار کے ایسے ہی لمحات کے لیے ایجاد کیا گیا ہے۔ ویرا نے سکوت توڑنے کے لیے دوبارہ لب کشائی کی۔ اعصابی تناؤ کے عالم میں شطرنج بھی پورے دھیان سے نہیں کھیلی جا سکتی۔ وقت گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، ورنہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر اکتا جائیں گے۔ آپس میں کوئی فساد بھی شروع ہو سکتا ہے۔ ویرا نے رائے ظاہر کی۔ تم اکتا جاؤ تو اور بات ہے، میں تمہیں دیکھ دیکھ کر نہیں اکتا سکتا۔ جب سے بیکسٹر نے خودکشی کر کے تمہاری خوبصورتی کا اعلان کیا ہے، مجھے محسوس ہونے لگا کہ تم واقعی دلکش خاتون ہو، جس کو اپنانے والا ہر وقت محلے والوں سے سر پھٹول میں مبتلا رہے گا۔ ویرا کا کھلا ہوا چہرہ میرے آخری فکرے پر بگڑ گیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ آپ میرے سامنے بیکسٹر کا نام نہ لینا۔ کیا تم اسے بھول نہیں سکتے؟ وقتی طور پر مجھے بھی اس کی موت پر صدمہ ہوا تھا، مگر وقت دھیرے دھیرے ہر صدمے کا نشان مٹا دیتا ہے۔ بچوں جیسی باتیں مت کیا کرو۔ خود ہی دیکھ لو کہ اس وقت بیکسٹر کے ذکر پر تمہاری آنکھوں میں نمی کا ذرا سا بھی نشان نہیں آیا۔ یہ میرے دل گیر ہونے کی بات نہیں ہے، میرے لیے یہی احساس کافی ہے کہ میری وجہ سے کسی نے خود کو زندگی کی ساری نعمتوں سے محروم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس میں تمہاری رضامندی کا دور تک دخل نہیں تھا۔ نہ ہو پھر بھی ندامت کا احساس ہوتا ہے۔ میں سنجیدگی سے تم سے التجا کر رہی ہوں کہ اس واقعے کا مذاق میں بھی ذکر نہیں کیا کرو۔ اس سے آخری ملاقات میری نظروں میں گھوم جاتی ہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اس کی آنکھوں میں ناشتی ہوئی معصومانہ چمک کو شیطانی جذبوں کا آغاز سمجھ کر اسے بری طرح لتاڑ دیا تھا۔ شاید وہ خودکشی سے پہلے اس کرم میں مبتلا ہو کر روتا رہا تھا کہ ہم دونوں نے اسے اور اس کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی زندگی کی ایک حسرت پوری ہوئی تو اسے بے عزتی کے صدمے سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ وہ نازک انسانی جذبوں کا ایک پیچیدہ کیس تھا۔ میں نے ویرا سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اپنے کمرے میں بند رہ کر وہ کسی معصوم بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس وقت بھی میں اسے نہیں سمجھ سکا۔ اسے منہ لگانے کے بجائے اس کے حال پر چھوڑ آیا۔ سبب کچھ بھی رہا ہو، وہ ایک المناک صحنہ تھا جس کے ذکر پر دل اداس ہونے لگتا ہے۔ مجھے بھی اس کے ذکر سے خوشی نہیں ہوتی۔ تم نے دیکھا کہ بلیک ڈیڈ اس کے نام پر $10,000 خیرات کر کے کتنی جلدی اسے بھول گیا۔ ان لوگوں کی بات نہ کرو، میں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اندر سے یہ سب درندے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی جب تک غول میں رہ کر لڑنے بھڑنے کے قابل ہوں، انہیں ساتھ لے کر آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ کوئی زخم کھا کر گر جائے تو اسے روند کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم حالات کے ایسے چنگل میں پھنسے ہیں کہ دن رات ہمارا واسطہ انہی درندوں سے رہتا ہے۔ میں نے متاسفانہ لہجہ میں کہا، دیکھو ان چکروں میں کب گلو خلاصی ہوتی ہے۔ 7 بج رہے ہیں، دیکھ لو شاید بدری نے کچھ معلومات حاصل کر لی ہوں۔ خوش قسمتی سے بدری اس وقت بھی ہوٹل ہی کے کمرے میں موجود تھا۔ میں نے لائن ملتے اس سے پوچھا، عزت اور احترام میں اتنے اضافے کے بعد بھی تمہیں ہلٹن یا شیرٹن کے بجائے نیو یارک کے ایک غیر معروف ہوٹل میں کیوں ٹھہرایا گیا ہے؟ مینہٹن میں قدم قدم پر 4 اور 5 اسٹار ہوٹلوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ وہاں بیٹھ کر تفریح اور عیاشی تو کی جا سکتی ہے، کام مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت گارہام کے 5 کمرے ہمارے تصرف میں ہیں اور درمیانے درجے کا یہ ہوٹل ایک عارضی CIA یونٹ بنا ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے کسی میزبان نے گارہام کے خلاف تمہارے کان بھرے ہیں۔ آخری فکرہ ادا کرتے ہوئے معنی خیز انداز میں ہنسا تھا۔ میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے یوں ہی کہہ ڈالا، ہاں یہاں گارہام کی شہرت کچھ اچھی نہیں ہے۔ گارہام کیا، یہاں کے کسی بھی ہوٹل کی شہرت اچھی نہیں ہے۔ سیاحوں میں وہی ہوٹل زیادہ مقبول ہوتے ہیں جہاں زندگی کے گزرے ہوئے لمحوں کو رنگین بنانے کے لیے آزادیاں اور آسانیاں ہوں۔ ویسے تم فکر مت کرو، گارہام ایک معقول ہوٹل ہے۔ شاید میں بہک گیا، 7 بج چکے ہیں، میرے کام کا کیا رہا؟ ویرا کے اشارے پر میں چونک کر فوراً ہی مطلب کے بات پر آ گیا۔ وہ چاروں نیو یارک کے معززین کی فہرست میں ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ان چاروں کے پتے ڈیوڈ اسٹارز کے دفتر کی معرفت ہیں۔ سرکاری تفریحات کے دعوت نامے وغیرہ بھی اسی پتے پر ارسال کیے جاتے ہیں۔ ان کے رہائشی پتے ابھی تک نہیں مل سکے۔ یہ کیا بات تمہیں حیران کن معلوم نہیں ہوتی؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تمہارے ذریعے آنے والی ہر بات میرے لیے شدید ترین حیرانی کا سبب بنتی ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تم نے مجھے 4 نام دیے اور وہ چاروں ڈیوڈ اسٹارز سے متعلق ہیں۔ شاید اس 8 گھنٹے کے بعد اب تم ان پر مہربان ہونے کا ارادہ کر رہے ہو۔
ये चारों खुद भी सरगर्म डेविड स्टार्स हैं। इस आग घंटी का जानशीन इन्हीं में से किसी को चुना जाएगा। तुम्हें मालूम है कि ये लोग सर से पैर तक साजिशों में गर्क हैं। मेरी कोशिशें जारी हैं। हो सकता है कि कल तक कोई काम की बात सामने आ जाए। अपने शिकार की तलाश की धुन में इस काम को भूल ना जाना। इस वक्त लोहा गर्म है, चोट पड़ेगी तो एक ही वार में कुछ काम बन जाएगा। वो तलाश चलती रहेगी। वो हंसते हुए बोला, पूरे न्यूयॉर्क से अब तक मुश्तबा ईरानियों की एक बड़ी तादाद से कड़ी बाज पुरस की गई है। इनमें मुतअद्दिद जोड़े भी शामिल हैं। नतीजा सिफर है। बेशतर बेगुनाह ईरानियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। 2 जोड़े अब भी ज़ेर तफ्तीश हैं। अब तुम इस मुहिम के सरबराह बना दिए गए हो तो ये ख्याल रखना कि किसी ईरानी के साथ ज्यादती ना होने पाए। तुम्हारी सुरखरुई एक ईरानी ही की मेहनत का नतीजा है। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। मुझे यह भी याद है कि अपने इन पड़ोसियों के लिए तुम बरादराना जज्बात रखते हो। खुशहाली के शाही दौर में ईरान ने आड़े वक्तों में तुम्हारा बहुत साथ दिया है। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारा वो करमानी दोस्त अब भी न्यूयॉर्क में है या कहीं और निकल चुका है। आखिरी आमतरीन इतला देने के बाद से वो लापता है। उससे मेरा राब्ता टूट चुका है। वो अपने पुराने ठिकाने से कहीं और मुंतकिल हो चुका है। मैंने भी होटल छोड़ दिया है। दोनों एक दूसरे के नए ठिकाने से बेखबर हैं। चाहें तो भी राब्ता नहीं कर सकते। तुम्हारे बेशतर अंदाजे दुरुस्त निकलते हैं। इस बारे में तुम क्या कहते हो? वो बहुत ज़हीन और मौका शनास है। इस आग घंटी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही खामोशी सी किसी दूसरे बड़े शहर की तरफ कूच कर गया होगा। मैं सोच रहा हूँ कि इस नज़रिए की आड़ लेकर इसकी तलाश की मुहिम शिकागो या लॉस एंजलिस की तरफ मुंतकिल कर दूं। यहाँ की सरगर्मियों से मुझे कुछ खौफ आ रहा है। कैसा खौफ? भूल कर भी ये गलती ना करना। इस बहाने तुम न्यूयॉर्क में आकर बैठ गए हो तो हमारा करीबी राब्ता इस्तवार हो गया है। तलाश का मरकज तब्दील किया तो तुम्हें भी वहीं जाना होगा और हमारा राब्ता टूट जाएगा। चाहे तुम्हें इल्म नहीं कि इंटरसिटी और इंटरनेशनल कॉल्स की सूरत में CSD की अफादियत बड़ी हद तक कम हो जाती है। नहीं, इसकी पुरवसूख आवाज उभरी। इस पर मकामी से इंटरनेशनल तक हर कॉल 100% महफूज होती है। मैं रिचमंड से बिला वजह ही सारी बातें नहीं करता था। यह डिवाइस हर तरह से महफूज और आजमूदा है। तुम इसे बेखौफी से हर कॉल पर इस्तेमाल कर सकते हो। गुफ्तगू यकीनन महफूज रहती होगी, मगर तुम बिलिंग से वाबस्ता लवाजम को शायद भूल रहे हो। बिलिंग? स्पीकर फोन पर उसकी पुरख्याल बुड़बड़ाहट उभरी। चंद सानियों के बाद वो चौंक कर पुरजोश राजन बोला, ओह, तो तुमने होटल इसलिए छोड़ा था। तुम ठीक कह रही हो। डिवाइस गुफ्तगू को दखल अंदाजी से महफूज रख सकती है। बिलिंग के मकासद के लिए नंबरों और दौरानिए की खुदकार रिकॉर्डिंग इसके दायरा अमल से यकीनन खारिज होती होगी, वरना इस पर शहर से बाहर बात करनी मुमकिन न रहती। इसीलिए कह रहा हूं कि जब तक मुमकिन हो न्यूयॉर्क में जमे रहो। किसी खौफ और अंदेशे को अपने दिल में जगह ना दो। अपने आदमियों को यहां उलझा कर आवाज को कहीं और ऐश करने दो। मेरा यह खौफ तुम्हारे लिए है। झिझकती हुई आवाज आई, अच्छी शोहरत रखने वाले सारे एहलकार ज्यादा देर तक या मरकूज रहे तो इनका हाथ तुम तक भी पहुंच सकता है। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूं। तुमको इस अंदेशे में हल्कान होने की जरूरत नहीं। दाऊदी सितारों की तबाही के लिए तुम्हारा यहां होना बहुत जरूरी है। तुम इतने ही पुरएतमाद हो तो मेरे लिए भी न्यूयॉर्क बेहतर जगह है। यहाँ मैं ऊपर वालों के 24 घंटों के तसलसल से बिल्कुल आज़ाद हूँ और यह शहर भी ज्यादा अजनबी नहीं लगता। फोन पर हमने बहुत बातें कर ली। अब मिल बैठने की राह निकालो। 1-2 रोज में कुछ सोचता हूँ। उसने मेरी बात काट कर जवाब दिया, फिर चौंक कर बोला, हाँ, वो कसरे सदारत का ख्याल दिल से निकाल दो। कुछ अरसे तक वहां के सिक्योरिटी स्टाफ में रहने वाला एक अफसर मेरे साथ काम कर रहा है। बातों में उसने बताया कि वहां दाखिल होने वालों के दस्ती सामान को छेड़े बगैर स्कैनिंग के खुदकार आलात और खुफिया एक्सरे कैमरों के जरिए मुसलसल निगरानी में रखा जाता है। वहां दाखिल होना जितना आसान है, किसी बुरे इरादे से वहां ठहरना उसी कदर दुश्वार है। वहां पकड़े जाने वालों के साथ जो सलूक किया जाता है, इसके बारे में किसी अखबार में कोई खबर नहीं छपती। ये इब्तदाई इतलात हैं। हो सकता है कि कल तुम ही कोई हौसला अफजा राह सुझा दो। इसे अपनी फहरिस्त में शामिल रखो और काम करते रहो। मैं तुम्हारे मशवरे के बगैर कोई कदम नहीं उठाऊंगा। डेविड स्टार्स की ऐसी पुरस्कार राजदारियों से मैं भी लाइल्म थी। फोन बंद होने के बाद वीरा ने तहय्युर ज़दा आवाज में कहा, ये लोग न्यूयॉर्क के कल्ब में माफिया के गॉडफादर की सी जिंदगी गुजार रहे हैं। जहां अज़ाइम नेक नियति पर मबनी ना हो, वहां राजदारी नागुज़ीर हो जाती है। यहाँ सेहूनी नस्ल परस्तों का गलबा जरूर हो सकता है, मगर इनके गैर मुनज़्ज़म मुखालिफिन भी बड़ी तादाद में बसते हैं। वो अपनी सरगर्मियों को राजदारी से खुफिया न रखें तो कोई भी सरफिरा इनको बारूद से उड़ा सकता है। बारूद से ना सही, वो किसी ना किसी तरह जरूर उड़ाए जाएंगे। वीरा तलखी से बोली, हमें गुफ्तगू की वो सारी आज़ादी 2 वजह से मुयस्सर थी। हम बेशतर बातें उर्दू में करते थे जो माई के लिए काबिल फहम नहीं थी। दूसरा सबब यह था कि माई को गैर जरूरी तौर पर मंडलाते रहने की इजाज़त नहीं थी। उसे बताया गया था कि घर के जरूरी कामों को निपटा कर उसे अपने सर्वेंट क्वार्टर में आराम करना चाहिए, जहां उसको बुलाने के लिए घंटी मौजूद थी। घंटी के बटन दोनों ख्वाबगाहों के साथ
किचन भी मौजूद थे। न्यूयॉर्क के चारों डेविड स्टार्स के बारे में पाए जाने वाले मुकम्मल ब्लैक आउट ने मेरी तबीयत बिल्कुल ही बेमजा कर दी थी। तबीयत की बहाली के लिए मैंने मेजर जंजुआ के घर का नंबर मिला लिया। उसे तवक्का नहीं थी कि मैं इतनी जल्द दोबारा उससे राब्ता करूंगा। वो मेरी बेतकल्लुफाना आवाज़ सुनते ही मुझे पहचान गया। उसे मैं बता चुका था कि मेरी सफरी दस्तावेजात असलम खान के नाम से थी। उसने आवाज़ पहचानने के बाद मुझे उसी नाम से मुखातिब किया था। मेरे लिए खुशी की बात है कि तुम्हारी मसरूफियात के खाते में कहीं मेरा नाम भी लिखा हुआ है। मैंने आज की डाक से तुम्हारा लिफाफा पाकिस्तान रवाना कर दिया है। कल तक वो मंजिल पर पहुंच जाएगा। मैं तुम्हारे इस ताउन को याद रखूंगा। मेरे लिए वो खत बहुत अहम था। तुमसे मुलाकात के बाद अब मुझे टेलीविज़न और अखबारात की खबरों में ज़्यादा लुत्फ आने लगा है। आदमी सच जानने के बाद जब हर तरफ से झूठ का तूफान सुनता है तो क्या लगाने पर मजबूर हो जाता है। मेरा ख्याल है कि जब तक तुम यहाँ मौजूद हो ऐसे लतीफ़े रुनमा होते रहेंगे। उसकी गुफ्तगू बहुत मोहतात थी। उसने भूल कर भी कहीं कोई काबिल गिरफ्त लफ्ज़ या नाम इस्तेमाल नहीं किया था। डेविड स्टार्स के मैंने उसे अपनी सरगर्मियों की नई जहद से आगाह करना चाहा, मगर उसने बौखला कर मेरी बात दरमियान ही से काट दी। खुदा के लिए फ़ोन पर मोहतात रहो। हो सकता है कि मेरे फ़ोन पर ऑब्जर्वेशन मौजूद हो तो मेरी मजबूरी समझ रहे हो ना। हम लोग वैसे भी यहाँ दोस्ताना नज़रों से नहीं देखे जाते। इसकी बात मुकम्मल होने पर मैंने हंसते हुए कहा, मैं इतना अहमक नहीं हूँ कि इन नज़ाकतों को बालाए ताक रखकर तुम्हें मुश्किलात में डाल दूँ। मेरी लाइन पर एक ऐसा आला मौजूद है जो मुदाखलत की सूरत में फ़ौरन फ़ोन बंद कर देता है। तुम्हारे फ़ोन पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। मेजर जंजुआ के लिए एक दिलचस्प और कार आमद इतला थी। CSD के बारे में उसने पै दर पै कई सवालात कर डाले। मुकम्मल मालूमात हासिल कर लेने तक मुझे अपने मौजू की तरफ लौटने का कोई मौका नहीं दिया। जब वो इस आले की कारकर्दगी से पूरी तरह वाकिफ हो गया तो उसने खुश दिली से कहा, हाँ अब हम डेविड स्टार्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। यह बताओ कि इस नाम पर तुम खाइफ क्यों हो गए थे। मैंने उससे पूछा, सेहोनी लाबी पाकिस्तान की कट्टर दुश्मन है। इसे डेविड स्टार्स ही से सरमाए के साथ गाइडलाइन मिलती है। हम इनकी सरगर्मियों से बाखबर रहने की कोशिश जरूर करते हैं, मगर इनके बारे में आज़ादाना गुफ्तगू से परहेज करते हैं। हमारा कोई भी लफ्ज़ नापसंदीदा सिफारती सरगर्मियों के ज़ुमरे में शुमार करके हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की जा सकती हैं। तो मेल में है कि इस तंजीम को कौन कौन चला रहा है। मैंने पूछा, अब शायद सिर्फ 4 रह गए हैं। उसके जवाब से मेरे दिल में उम्मीद की एक नई किरण नमूदार होगी। वो कौंसल खाने के तिजारती शोबे का सरबराह होने के बावजूद इन मामला से बिल्कुल बेखबर नहीं था। तुम इनके फ़ोन नंबर या ठिकानों की निशानदेही कर सकते हो। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ पूछा, यह मेरा शोबा नहीं है। मैं मुतलका लोगों से बात करके बता सकता हूँ। मेरे पास शायद किसी एक के घर का नंबर पड़ा हुआ है जो मैं देख कर बता सकता हूँ। एक पाकिस्तानी सफारतकार के पास किसी आम तरीन डेविड स्टार के घर का पता मौजूद होने की खबर सुनकर मेरे बदन में सनसनी की लहरें सरायत कर गईं। लम्हा भर में ज़हन में मुतअद्दिद ख्यालात आंधी की तरह आकर गुजर गए। मेरे लिए वो चारों डेविड स्टार्स यक बयक अपनी अहमियत खो बैठे थे। अहम तरीन सवाल यह बन गया था कि मेजर जंजुआ के पास वो नंबर क्यों और कैसे आया था। मैंने खुद को पुरस्कून रखने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए सवाल किया, यह नंबर तुम्हें कैसे मिल गया। एक कॉकटेल पार्टी में बेंजामिन फोर्ट मेरे करीब मौजूद था। उसने मेरे सवाल की अहमियत को समझे बगैर रवा रवी में कहना शुरू किया। वो BBC की एक नामा निगार को वो नंबर बता रहा था ताकि वो इससे बराह रास्त बात करके इंटरव्यू का वक्त तय कर सके। मैंने वो नंबर सुनकर अपनी पॉकेट डायरी पर लिख लिया। बाद में वो नंबर मुतलका अफसर को दे दिया, मगर मेरी नोटबुक पर वो अभी तक महफूज होगा। सवाल का इत्मीनान बख्श जवाब मिलते ही मेरी असाबी कशीदगी दूर हो गई। सारे अंदेशे बरसात की गर्द की तरह बैठ गए। मैंने कहा, मैं होल्ड कर रहा हूँ, तुम नंबर तलाश करके बताओ, मैं डायरी लाता हूँ। इसके बाद 1 मिनट से भी कम वक्फे के लिए लाइन पर सकूत छा गया। फिर मेजर जंजुआ दोबारा लाइन पर आ गया। ये नंबर मिल जाने के बाद मुझे इस पर काम करना है। तुम बकिया 3 के बारे में मालूमात ज़रूर हासिल करना। मैं कल शाम तुमसे बात करूँगा। यहाँ की बजाय मुझे दफ्तर ही में फ़ोन करना ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा फ़ोन किसी बग की जद में नहीं है। उसने फ़ौरन ही फरमाइश कर दी, हो सके तो तुम हमारे दफ्तर के सारे नंबर चेक कर डालो। इस खौफ की वजह से हम फ़ोन पर किसी से खुलकर बात नहीं कर सकते। ठीक है, कल 3 बजे से पहले बात होगी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। बेंजामिन फोर्ट का नाम ब्लैक डैड की दी हुई फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद था। हरकत में बरकत वाली तुम्हारी थ्योरी इस बार भी दुरुस्त निकली। कॉकटेल पार्टी में बहके हुए बेंजामिन की एक गलती उसका सुराग बंद कर हमारे हाथ लग चुकी है। अब इससे भी 2 हाथ हो जाएंगे। वो घर का फ़ोन नंबर था। दूसरी घंटे पर एक खातून ने फ़ोन उठाया और गैर अमरीकी लहजे में हेलो कहा और मेरा नाम जानना चाहा। मैंने अपना नाम बताए बगैर बेंजामिन फोर्ट से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। सॉरी सर, मैंने आपका नाम जानना चाहा था, नहायत इखलाक और शाइस्तगी से कहा गया। लम्हा भर के लिए मैंने सोचा और फिर क्या डाला, गैप है। बेंजामिन को बता देना कि यह ज़रूरी कॉल है। सर, आपने गैप ही कहा ना। निस्वानी आवाज़ इस अजीब नाम पर कदर तहायुर ज़दा थी। यस, GAP, गैप है।
मैंने जोर देकर सख्त लहजे में कहा। लम्हा भर के लिए सुकूत रहा, फिर अचानक ही CSD का बुजर बोल उठा। लाइन बंद हो गई। मैंने स्पीकर फोन को बंद करके दोबारा ऑन किया, रिडायल बटन दबाया। इस बार पहली घंटी पर वही खातून लाइन पर आ गई। सुनो खातून, किसी एक्सटेंशन को उठाते ही लाइन दोबारा कट जाएगी। वो बात करनी चाहता है तो उसे यहीं बुला दो। मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि एक अहम कॉल है। सॉरी सर, वो लाइब्रेरी में है, मैं उन्हें वहां डिस्टर्ब नहीं कर सकती। निस्वानी आवाज से बेबसी मुतरश्शिद थी। पिछली बार शायद इन्होंने ऊपर से फोन उठाया था और लाइन कट गई थी। क्या तुम उसके मुलाजमा हो? मैंने दुरुस्त लहजे में पूछा। यस सर, मैं हाउस मेट हूँ। वो 9 बजे खाने के लिए नीचे आएंगे तो मैं इन्हें आपका पैगाम दे दूंगी। वो अपनी जानिब से हर मुमकिन ताउन करना चाह रही थी। मैं तीसरी मरतबा फोन मिलाता हूँ, तुम घंटी बजने देना ताकि वो खुद उठाए और मेरी बात हो सके। मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, मैं 9 बजे तक इंतजार नहीं कर सकता। मुसलसल घंटी बजती रही तो मेरे लिए जवाबदेही मुश्किल हो जाएगी। वो इसे मेरी गफलत करार देंगे। उसकी आवाज़ रूहान सी होगी। वो बेचारी वाकई मुश्किल में पड़ गई थी। मैंने बटन दबाकर फ़ोन बंद कर दिया। लड़की अपनी जगह मजबूर थी, लेकिन यह पता चल चुका था कि वो रात के 9 बजे निचली मंजिल पर फ़ोन के आसपास मौजूद होगा और उसे यह मालूम हो चुका होगा कि कोई उससे गैप के हवाले से बात करने चाह रहा है। तुम फ़ोन पर उससे क्या बात करने चाह रहे हो? कॉल का सिलसिला मुनक़ता होने पर वीरा ने मुतजस्सिस लहजे में सवाल किया। बाज़-औक़ात तुम मशवरे के बगैर अचानक ही मनमानियाँ करने लगते हो। बेंजामिन फोर्ड का नाम और फ़ोन नंबर मिल जाने के बाद हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा जा सकता। इसे रगेदने के लिए इस पर कोई जाल डालना पड़ेगा। मैंने सिगरेट सुलगा कर कहा, तुमने फ़ोन पर गैप का हवाला देकर कोई अक्लमंदी नहीं की? वीरा बुरा सा मुंह बनाकर बोली। यह लफ्ज़ उसे कबल अज वक्त होशियार कर देगा। ये तुम्हारा ख्याल है, मेरा अंदाज़ा है कि गैप का नाम उसे खौफजदा कर देगा। यह भी इसी वक्त मुमकिन होगा जब वो गैप के वजूद और इसकी अहमियत से पूरी तरह बाखबर हो। क्या तुम्हारी दानिश में यह इम्कान भी है कि डेविड स्टार्स गैप से लाइल्म हो? वीरा ने हैरत से सवाल किया। वो लोग इस मुआहदे में एक फरीक के तौर पर शामिल हैं। ये सामने की बात है कि गैप का एक एक लफ्ज़ इन लोगों के मजमूम इरादों की तकमील करता हुआ नजर आता है। लेकिन अमेरिका के ऐवान सदारत से लामहदूद इख्तियारात का वो परवाना डेविड स्टार के हर रुकन को जारी नहीं किया गया था। इनकी तरफ से सिर्फ रास अल-मैडा को रियायतें दी गई थी, जो बहुत पहले जहन्नुम वासिल हो चुका है। वीरा तफहीमी अंदाज में सर हिलाते हुए बोली, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। एक इत्तिफाक है कि आइजक बेल रिंग्स के सरबराह के तौर पर इस मुआहदे का दूसरा फरीक है और इसी हैसियत में गैप को इस्तेमाल करता चला आ रहा है। यह महज एक इत्तिफाक है कि रास अल-मैडा के बाद डेविड स्टार्स की सरबराही भी उससे मिल गई है। गैप के मतीन में बहुत वाज़ेह अल्फाज में यह शिक मौजूद है कि हर फरीक पूरी जिम्मेदारी से इसकी राजदारी की हिफाजत करेगा और किसी पांचवें फर्द को दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर इससे आगाह नहीं करेगा। वैसे भी आइजक बेल ने अपनी करिश्माती कामयाबियों से दूसरों को मरूब करने के लिए गैप का वजूद खुफिया रखा होगा, लेकिन इसकी गिरफ्तारी के बाद शायद सूरत हाल बदल चुकी है। गिरफ्तारी के बाद तो वो बिल्कुल ही बेबस है और मजबूर होकर रह गया। इसकी इसी बेबसी और मजबूरी की वजह से गैप का जिक्र निकल सकता है। मैंने सिगरेट का एक गहरा कश लेकर पुरख्याल लहजे में कहा, पहले बदरीनाथ इस लफ्ज़ से लाइल्म था। मैंने उसे ब्रीफ किया, उसे दूसरों को बताया और बात फैल गई। इसी तरह यह भी हो सकता है कि सब्ज़ फाइल खास से निकल जाने के बाद आइजक बेल ने अपने बाज़ साथियों को एतमाद में लिया हो। यह हो सकता है गैप का नाम बाज़ लोगों के इल्म में आ सकता है। यह और बात है कि इसका भयानक मतिन किसी के भी इल्म में ना आया हो। बस मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा था। मैंने जल्दी से कहा, कुछ लोगों को यह मालूम हो चुका है कि गैप नामी एक पुरस्कार दस्तावेज के जरिए आइजक बेल को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हासिल थे और वह अपनी बदकिस्मती से वो दस्तावेज खोकर हर राय से महरूम हो चुका है। इसका मतलब है कि अब गैप न्यूयॉर्क के बाखबर हलकों में एक खून आशाम पहेली का रूप धार चुका है। बहुत से लोग इस लर्जा खेज दस्तावेज के वजूद से वाकिफ हो चुके हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इसके औराक पर क्या लिखा हुआ है। वीरा ने मेरी कही हुई बातों को चंद फिक्रों में समेट कर इनका यादा करते हुए कहा, और अब तक गैप के कई मुतलाशी मैदान में आ चुके होंगे। मैंने कहा, जब किसी को इसका मतन का इल्म ही नहीं है तो इसके मुतलाशी मैदान में कैसे उतर सकते हैं? वीरा ने मेरे बयान पर फौरन ही एक एतराज जड़ दिया। इसका मतन खुफिया है, लेकिन यह बात हर शख्स जानता है कि पिछली रात से CIA वाले न्यूयॉर्क के होटलों में अब्बास करमानी को दीवाना वार तलाश करते फिर रहे हैं। वो अब्बास करमानी की तलाश में है। आइजक बेल ने कहा है कि उसे डैनी ने इस हाल को पहुंचाया है। समझने वाले समझ चुके होंगे कि वो डैनी हो या अब्बास करमानी, गैप उसी के कब्जे में है। ये CIA और FBI के मामलात हैं। वीरा ने हस्बे आदत मेरी बात को कोई अहमियत दिए बगैर कहा, गैप के लिए अहरे गैरे क्यों मैदान में उतरेंगे? बाज़-औक़ात तुम्हारी सोख्ता खोपड़ी पर बर्फ जम कर रह जाती है और तुम। इसने मेरा फिक्रा दरमियान ही से काट दिया और तिनक कर बोली, ओख्ता सोख्ता जैसे फरसूदा फारसी अल्फाज इस्तेमाल करके मुझे इश्तियाल दिलाने की कोशिश मत करो। इतनी फारसी मैं भी जानती हूँ।
اگر تم عباس کرمانی کا کردار ایجاد کر سکتے ہو تو میں بھی عادی فارسی بول سکتی ہوں۔ اس کی عادی فارسی دانی کے دعوے پر میں بے اختیار ہنس پڑا۔ دوسروں کے لیے وہ عادی فارسی اہم ہوگی جو تم بولنے سے قاصر ہو۔ مجھے باتوں میں الجھانے کی کوشش مت کرو۔ یہ بتاؤ کہ غیر متعلقہ لوگوں کو غیب جیسے مسودے میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ویرا کے لہجے کی ترشی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ سیکرٹ ایجنٹ اور ایک تخریب کار کے درمیان بال سے زیادہ باریک فرق ہوتا ہے۔ اپنے ملک کے لیے جو شخص ہیرو قرار پاتا ہے، دشمن کے لیے وہی گردن زدنی ہوتا ہے۔